Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आर्थिक जगत से जुड़ी ताज़ा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को आज सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, परंतु याद रखें कि किसी विशेष कंपनी के बारे में आपको जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का STD कोड 011 डायल जरूर करें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, नमस्कार। मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices close week's first trading session with losses. Sensex dips over 300 points. Nifty ends below 26,000. Most Asian stock markets record positive closes, and Standard & Poor's global rating projects India's GDP growth at 6.5% in current fiscal. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में गिरावट पर हुए बंद। सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा, निफ्टी 26,000 से नीचे हुआ बंद। अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आई तेजी और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का दिया अनुमान। And before we move on, friends, here's an announcement. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर। लालिमा, Yes or no? प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.4% की गिरावट पर बंद हुए। बाजार तेजी के साथ खुले, लेकिन उतार चढ़ाव भरे सत्र के आखिरी घंटे में दिन के उच्चतम स्तरों से नीचे आ गए। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 331 अंकों की गिरावट से 84,901 पर बंद हुआ और निफ्टी 109 अंकों के नुकसान से 25,960 पर दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का ही रुख था। बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक करीब 0.3% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed around 0.4% down today. The market started the day with gains, but after a chopping trading session, the indices pulled back from their day's highs in the last hour of trading. The Sensex shed 331 points to close at 84,901, while the Nifty dipped 109 points to settle at 25,960.
The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in negative territory. The mid-cap index dipped around 0.3%, while the small-cap index declined over 0.8%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 22 के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर 3% लुढ़क गया। टाटा स्टील के शेयर में 1.6% की और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में लगभग 1.6% की गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा के शेयर में 2.4% से अधिक उछाल आया। एशियन पेंट्स के शेयर में लगभग 0.5% और HCL टेक के शेयर में 0.3% से अधिक बढ़त दर्ज हुई। Across sectoral indices at the BSE, IT Pack emerged as the sole sectoral gainer, while all other sectors succumbed to selling pressure. Among the key decliners, realty slipped 2.1%, capital goods dipped over 1.3%, and metal as well as utilities both decreased over 1.2%. Among the top gainers, focused IT advanced over 0.4%, IT increased more than 0.3%, and tech rose 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,033 companies declined, 1,209 advanced and 207 remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 89 रुपए 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 100.08 पर था। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर कोलकाता से विकास, आपका स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मार्केट जी नमस्कार। सवाल मेरा पूछिए। सवाल है आईपीओ रिलेटेड। जो आईपीओ आते हैं उसका सब्सक्रिप्शन 50 गुना 60 गुना दिखाते हैं जब हम अप्लाई करते हैं। जी जब लिस्टिंग होता है यही माइनस में लिस्टिंग होता है, ऐसा क्यों? कौन सा आईपीओ में, क्या आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देके अप्लाई करना सही रहेगा? कौन सा टाइम में आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? और आईपीओ कैसे समझो ये लिस्टिंग कितना होगा, कैसे कहाँ से पता चलेगा? देखिए, आईपीओ में जहां तक आप बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन यानी कि जितने शेयर उपलब्ध हैं उससे कहीं ज्यादा के लिए बोली लगी है, तो इसके 2 कारण होते हैं। एक कारण तो आप समझिए कि जो संस्थागत निवेशक हैं वो बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं, बोलियां लगाते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि हाल के दिनों में जितने भी आईपीओ आए हैं उसमें छोटे निवेशक, खुदरा निवेशक जिनके लिए 2 लाख रुपए की सीमा तय है आवेदन के लिए, उनकी भी भागीदारी अच्छी रही है। कुछ आईपीओ जरूर जब उनकी लिस्टिंग हुई है तो वो निगेटिव के साथ लिस्टिंग हुई है, लेकिन ज्यादातर आईपीओ ने जो है वो शुरुआती से ही निवेशकों को फायदा दिया है। अब आपका प्रश्न यह है कि किस तरह के आईपीओ का सिलेक्शन करें। देखिए, एक सीधी सी बात है कि आप कभी भी जब किसी भी आईपीओ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 3 अंकों पे नजर रख लीजिए। पहला कि कंपनी का कुल कारोबार, दूसरा देख लीजिए कि कंपनी का कुल मुनाफा, और तीसरा आप देख लीजिए कि कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसका प्रदर्शन कैसा है। और ये तीनों ही क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है तो वो आईपीओ आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक सामान्य गति से कंपनी का कारोबार बढ़ा है, कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, तो वो आईपीओ एक बेहतर निवेश का विकल्प दे सकता है। क्षेत्र विशेष पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में कई क्षेत्रों में जोखिम बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अब आईपीओ के लिए आप ना सोचें। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें, इन जगहों पर काफी ज्यादा है। लेकिन जो न्यू एज कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में उनके आईपीओ में काफी अच्छा प्रदर्शन मिला है। तो मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि जब कभी भी आप पैसे लगा रहे हो तो सुनी सुनाई बातों पर पैसा ना लगाएं। ये 2-3 अध्ययन कर लेंगे तो आपके लिए एक फैसले लेने में काफी आसानी होगी। All right, that was quite comprehensive. Moving on, we are now joined by Murtaza, who is calling us all the way from Mumbai. जी सवाल पूछिए मुर्तजा जी। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए मुर्तजा। हाँ, मेरा सवाल है मैडम कि मुझे एचडी का पैसा लगा जो मुझे मंथली 5 से 6 हजार रुपया रिटर्न मिले। हाँ हाँ। और दूसरा सवाल है कि मैं गोल्ड कब ले सकता हूँ फिर? देखिए, 5 से 6 हजार और
कितना आपको कितना कमाई करनी है हर महीने की, इसके लिए बेहतर है कि बैंकों के स्कीम में भी आप जो अलग अलग डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसमें पैसा रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपकी उम्र के आवाज से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो आपके लिए सीनियर सिटीजन का जो स्कीम, जो मंथली इनकम स्कीम का भी होता है, वो विकल्प आपके लिए अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक में आप पैसा रख सकते हैं, लेकिन अगर 6,000 रुपये महीने यानी कि 7,200 रुपये, माफ कीजिएगा 72,000 रुपये सालाना के लिए अच्छी खासी रकम जो है वो बैंक में रखनी होगी, तभी आपको इतना पैसा मिल सकता है। दूसरा आपका प्रश्न था कि सोना कब खरीदा जाए, तो मुझे लगता है कि ये समय अभी सोना खरीदने का नहीं है, क्योंकि सोने में जिस तरह की तेजी है उस तेजी पे आप खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा अगर उसमें आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब तेजी से उसमें गिरावट देखने को मिले तब जाकर के उसमें खरीदिए। जैसे अभी 1,22,000 1,23,000 का लेवल चल रहा है प्रति 10 ग्राम का, अगर 1,15,000 1,18,000 पे या 1,20,000 पे भी आता है तो वहां पे आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए कि सोने में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो गहना नहीं खरीदिएगा, खरीदना हो तो बिस्किट या सिक्के खरीदिएगा, गहना खरीदेंगे तो आपको घाटा ही होगा। सभी लिसनर्स के लिए बहुत उपयोगी आपने सलाह दी। और अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 2% के उछाल में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.6% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक मामूली वृद्धि में रहा। हालांकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की गिरावट पर बंद हुआ। इस बीच जापान का बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख बाजारों में रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.2% से अधिक की बढ़त पर था और लंदन के फुटसी में 0.1% की वृद्धि थी। लेकिन फ्रांस का कैक 0.2% से अधिक के नुकसान पर था। और अब लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए श्रम सुधार भावी अर्थव्यवस्था के निर्माण, अनुपालन सरल बनाने, महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की स्थिति को मजबूत करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को स्वीकार करती है। श्रम संगठन समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रसाद तिवारी ने श्रम संहिता सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया जिससे 45 करोड़ असंरक्षित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जा सकेंगे और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव होगा। मुझे लगता है कि भारत के श्रमिकों के इतिहास के लिए ये बहुत ही जरूरी कानून है और ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत का जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, इसमें बहुत ही चेंजेज आएंगे और ये चेंज से मजदूरों की जीवन दशा बदलेगी। क्या कहेंगे आप शिशिर, ये 4 जो आए हैं नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, ये कितने इम्पोर्टेंट है जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए और जो श्रमिक हैं उनके लिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जब हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो आर्थिक सुधारों का 2 रुख होता है, 2 पहलू है। एक पहलू जो आपका आर्थिक पहलू है और दूसरा जो है वो मानवीय पहलू है। अब जब आप आर्थिक पहलू की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि कर सुधार किस तरीके से किए गए या फिर हमने निवेश में किस तरीके की सहूलियतें दी। जब हम मानवीय सुधारों की बात करते हैं तो जो श्रम बल है उसके लिए आप क्या लेकर के आए हैं। आप देखिए, अगर इन चारों जो लेबर कोड की बात करें जिसके लिए अब राज्य सरकारों की ओर से अधिसूचना का इंतजार है, उसमें 2-3 चीजें मुझे काफी अच्छा लगा। सबसे पहली चीज कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का जो वेतन दिया जाना है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जब इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो महिला और पुरुष के वेतन के मामले में थोड़ा सा ये जो अंतर हुआ करता था वो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि महिलाओं के लिए जो काम करने के समय है उसमें भी काफी रियायतें दी गई हैं
तीसरी बात है क्रेच की फैसिलिटी, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बड़ी दिक्कत होती है कि उनके साथ उनके बच्चे हैं, प्रैक्टिकल एंगल है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा कि जो गिग वर्कर्स के लिए है, क्योंकि देखिए आज के दिन में हम आप सभी लोग ई कॉमर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो हमारे यहाँ सामान पहुंचा रहे हैं या सेवाएं हमें दे रहे हैं, उनकी सहूलियतों के लिए क्या है। तो जैसे उनके लिए ईपीएफओ या ईएसआई की सुविधा है, बीमा की सुविधा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास तौर पे ईएसआई के मामले में क्योंकि स्वास्थ्य के को लेकर के हम सभी जानते हैं कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाता है, और अगर उसको इस तरह की सुविधा ना मिले जहां पर रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा दी जा सके, तो उसके लिए जो लागत है वो काफी बढ़ जाती है। तो गिग वर्कर जिनकी संख्या लगभग 2,35,00,000 2030 तक पहुंचने का अनुमान है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर की बात है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात है। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये जो श्रम जो सुधार है वो आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा है, जिससे कि आप समावेशी विकास की तरफ तेजी से बढ़ सकेंगे। और जो बदलता परिवेश है पूरे व्यवसाय का, पूरे आर्थिक वातावरण का, उसके अनुरूप भी है। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स की बात करी, आज के दिन में आपके पास दो तरीके की व्यवस्था है। एक जो कि ब्रिक एंड मोटार, यानी कि एक इमारत है जहां पर दुकान है, और एक है दुकान आपके घर पे चल करके आ रहा है। तो हमको दोनों जगह पे काम करने वाले लोगों की सहूलियतों की बात करनी है कि वहां पर अगर हम उनके लिए खासतौर पे महिलाओं की बात करें कि वो रात्र के पाली में भी काम कर सके, जिनके लिए तमाम सुविधाएं दी जा सके, उनके बच्चों के लिए इंतजाम हो सके, और जो आपके घर पे लेकर के आ रहा है उसको हम क्या सुविधा दे रहे हैं। तो बदलते कारोबार के स्वरूप के लिहाज से श्रम व्यवस्था में बदलाव करना, इसीलिए मुझे लगता है कि इसको अगर हम ह्यूमन फेस ऑफ रिफॉर्म कहें तो वो एक बेहतर शब्द होगा इस पूरी प्रक्रिया को समझने में। And in India, I think Shishir, one size fits all wouldn't work because we are a very peculiar country. You have Navratri time when the sales go up, then you have a Shraddh period when sales come down, and then there's a harvesting season where a lot of these gig workers go back to the villages to help in the harvest work, isn't it? Yeah. So all the more it's important that we put and everything in black and white and in place. Yeah, and we need to understand that when the people are going out from Delhi during off season and when they are coming during the season, the peak season like festive season, we have to think about what best we can do, right. And not just in urban area but also in rural area, what best facilities we can provide it. So I think the overall theme of this reform is how to take the best from the labor by providing the best environment to him. Correct. Right. And friends, here's a special announcement for you since we are at it. We're talking about labor codes. Well, Akashvani will broadcast a special live phone-in program on recently implemented 4 labor codes from 7:10 to 7:45 p.m. today. During the program, listeners can ask questions about new labor regulations. Alok Mishra, Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment, will be in the studio to answer the listeners' queries. And to participate, you simply have to dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-237-17117, 011-237-17106, and 011-233-14444. 7:10 p.m. onwards today. Please do remember. Alternatively, you may also send in your queries through WhatsApp, and the number is 9289-094-044, or you may post your questions on X with the hashtag AskAIR. और अब हमारे श्रोता बिहार से मनोज काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मनोज, सवाल पूछे। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। सेंसेक्स में तक जा सकते हैं? आप प्लीज रिपीट करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। नहीं, आपको फिर से प्लीज आप फिर से कनेक्ट होइए, अभी आपका ठीक नहीं आ रही आवाज। Let's move on to our next story. And Standard & Poor's global rating has projected that India's economy will grow 6.5% in the current fiscal year and 6.7% in the next financial year. It said that tax cuts and monetary policy easing will give a boost to consumption-driven growth. India's real GDP is estimated to have expanded at 7.8% in the April to June quarter of the current fiscal, the fastest
pace in 5 quarters. The Reserve Bank of India has forecast GDP growth at 6.8% for the year, higher than the 6.5% recorded in the previous fiscal year. S&P said that a potential India-US trade agreement could significantly reduce uncertainty and boost investor confidence, particularly benefiting labor-intensive sectors by improving market access and stability. Well, for the moment, we are now joined by K.K. Shukla ji. He is calling us from Maharashtra. Ji Shukla ji, सवाल पूछिए. जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग जी जी जी. मेरा क्वेश्चन ESI कार्ड के विषय में था, उसके विषय में जरा डिटेल पे बताइए, जो मेडिकल कार्ड होता है ना उसके विषय में. देखिए, हर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर आपको अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपये या उससे कम है तो आपके लिए ESI कार्ड की फैसिलिटी देते हैं. जो जगह जगह पर उनके अस्पताल हैं और उन अस्पतालों में जाकर के आप अपना इलाज करवा सकते हैं, आप अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं. और एक अहम बात यह है कि भी थोड़ी देर के बाद जब श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव होंगे यहाँ पर, तो वहां पर भी आप उनसे इस सवाल के बारे में, इसके बारे में और विस्तार से पूछ सकते हैं. लेकिन अभी हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको ये सुविधा मुहैया कराते हैं. और अब दिल्ली से केशव जुड़ गए हैं हमारे साथ. बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछे. हेलो, नमस्कार जी. जी नमस्कार. शिशिर जी को मैं नमस्कार कहूंगा, क्योंकि आपने लास्ट में हमारे को बताया था गोल्ड के बारे में जी. और मैं आपकी जानकारी के लिए और ज्यादा. हेलो जी, बोलिए बोलिए. तो बताना चाहूंगा कि व्हाइट गोल्ड में थोड़ा मेकिंग मिलाई जाती है जिससे वो व्हाइट हो जाता है, और पिंक में भी थोड़ी मेकिंग मिलाई जाती है इसलिए व्हाइट पिंक हो जाता है. होता तो गोल्ड ही है. आपकी जानकारी के लिए आपने मुझे सुधारा, मैं थोड़ा सा और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बोला. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय से गोल्ड बड़ी हाई स्पीड से आगे जा रहा है. जब 60,000 था तो मैंने कहा ले लेते हैं, फिर 80 हुआ, फिर ले लेंगे, घटेगा तो. पर ये करते करते तो 125 के आसपास घूम रहा है. तो हम अब दोबारा कब परचेज करें, ऐसी कोई समय सीमा ऐसी तो पता नहीं चल पा रही सर. तो कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट बताइए कि हम इसको परचेज कर पाए. केशव जी, आपने हमारी जानकारी बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो जब मिश्रित हो जाता है तो वो शुद्ध सोना नहीं रहता है. उसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए. वो गहने आप लेते हैं, उससे उसकी कीमत कम हो जाती है. आपने अगर मेरा पूरा जवाब सुना होगा तो मैंने ये आपको बताया था, और खास तौर पे याद करके मैंने आपको बताया था. तो फिर भी आपने मुझे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार. दूसरा आपका जो प्रश्न है कि कब सोना लिया जाए, ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन हम सोचते हैं कि सोना अब शायद यहां से थोड़ा सा स्थिर होगा, लेकिन वो बढ़ जाता है. एक सीधा सा जवाब यह है कि जब तक वैश्विक अनिश्चितता खत्म नहीं होंगी तब तक सोने में गिरावट आने की उम्मीद नहीं रखिए. और वैश्विक अनिश्चितता ऐसी है कि आज यहां पे कुछ हो जाता है, कल किसी दूसरे 2 देशों के बीच में हो जाता है, अचानक लगता है कि शांति समझौता हो गया, फिर कहीं ना कहीं कोई बम पटाखे हो जाते हैं. तो ऐसी सूरत में वैश्विक अनिश्चितता के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना गलत होगा. तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सोने में निवेश ही करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में आप जा सकते हैं. वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा, जिसमें आप किस्तों में जो है वहां पे 200 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं. तो वहां पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप करें. लेकिन अगर सोने खरीदना चाहते हैं तो प्योर गोल्ड आपको लेना होगा, जो बिस्किट और बुलियन है. ये पिंक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, ये आपके लिए गहना है, ये आपका निवेश नहीं होना चाहिए. Correct. Right. All right. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India and Canada will fast-track negotiations for Free Trade Agreement (FTA) to boost bilateral trade and investment. Addressing the Indo-Canadian Business Chamber in New Delhi today, Mr. Goyal said India sees considerable scope for collaboration with Canada in critical minerals, clean energy, nuclear energy, and supply chain diversification. We have finalized the terms of reference and decided to launch free trade agreement negotiations and fast track them with the intention of bringing trade and investments on both sides to really reflect the close friendship and partnership that our two countries enjoy. Referring to the recent meeting between the prime ministers of both the countries during the G20 summit, Mr. Goyal said that both leaders agreed to begin negotiations for a high-ambition comprehensive economic partnership agreement and double bilateral trade by 2030.
और अब लेते हैं अगली खबर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में एकीकृत खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में आज छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सीमांत किसानों के लिए एकीकृत खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अगले 5 वर्षों के लिए एकीकृत खेती से संबंधित योजना बनाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि देश की 46% आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि में अनुसंधान और आंकड़ों की आवश्यकता पर जोर दिया है। How significant is integrated farming, Shishir? A quick comment. See, at this moment, when we have the very low share of agriculture in overall GDP, and we have to boost that, and we also have to provide the value addition to various agriculture activity. So this kind of approach is really going to help that. And we also need to remember that we have to achieve a target of $5 trillion by 2027. Right. And where the agriculture would play a very important role. And that is why this kind of scheme or this kind of approach is going to help the having a higher growth rate. और उन्होंने खासकर मार्जिनल फार्मर्स की बात की। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए कि लगभग अगर 86% किसान जो हैं वो छोटे और सीमांत हैं, तो हमें उनके बारे में तो अलग से सोच लानी ही होगी। All right. A look at the oil prices now. Global crude oil prices fell today. Meanwhile, investors weighed the chances for a U.S. rate cut against the prospect of a Ukraine peace deal that could lead to an easing of sanctions on major producer Russia. Brent crude was trading over 0.3% down at $62.36 per barrel, while WTI crude was trading around 0.4% down at $57.85 per barrel when reports last came in. अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है तो आपको लगता है कि रशिया से सैंक्शंस हट जाएंगे, रशियन ऑयल की सप्लाई बाजार में आएगी और प्राइसेस इसी लेवल पे रहेंगे, लोअर लेवल्स पे नीचे आएंगे? क्योंकि जब आपका मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, और अभी तो ओपेक प्लस की कोशिश यही है कि तेल के दाम थोड़े ऊपर रखे जाएं, और चूंकि जाड़े का मौसम आ रहा है तो जाड़े के मौसम में पश्चिमी देशों से मांग बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और रूस के तेल बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं तो कीमतों पर बहुत ही सकारात्मक असर होगा, भारत के लिए बहुत सकारात्मक। बिल्कुल। In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading around 0.7% down at 1,23,940 rupees per 10 grams, and silver was trading over 0.3% down at 1,54,280 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना लगभग 0.7% की गिरावट से 1,23,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 0.4% से अधिक गिरावट से 1,53,498 रुपए प्रति किलो पर थी। आज सोने को लेकर काफी रुचि दिखाई हमारे श्रोताओं ने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चांदी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? चांदी का प्रदर्शन सोने के बनस्पत ज्यादा बेहतर रहा है? बिल्कुल, चांदी एक जिसको कहते हैं ना कि एक अगर रिटर्न की हम बात करें तो सोने में जो रिटर्न था इस साल की पहली 6 महीने में वो लगभग 30% था, जबकि चांदी ने 41% का रिटर्न दिया है। और चांदी के भाव जो कहते हैं ना कि चांदी के भाव अब सोने की तरह आसमान छू रहे हैं, तो चांदी एक सरप्राइज फैक्टर है और मुझे लगता है कि अभी चांदी में तेजी और बाकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चांदी में भी क्या निवेश करने के कोई है विकल्प? बिल्कुल विकल्प है, और चांदी में उनको अगर एक्सपोजर लेना है तो अलग अलग जो पेपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें वो जा सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में करें तो आपके लिए बेहतर है। लार्ज सम में अगर आप फिजिकल ले रहे हैं तो थोड़ा ये है, और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, गहने नहीं खरीदिए निवेश के लिए। खरीदना है तो चांदी की जो बिस्किट होती है या चांदी की जो ईंट होती है वो आपको खरीदना चाहिए। शिशिर, इस चमकीले नोट पर आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, हमारे श्रोताओं से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। A look at the headlines again. Benchmark domestic indices close week's first trading session with losses. Sensex dips over 300 points. Nifty ends below 26,000.
Most Asian stock markets record positive closes, and Standard & Poor's global rating projects India's GDP growth at 6.5% in current fiscal. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood signing off. So it's Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।